Why we don't grow from our primary school level? What are the reasons that we remain almost the same and very few people they cross from primary level to superior level? This is a question of psychology, and we understand that human beings they start learning from family, and then they go to primary schools. Now what happens that they didn't don't increase their volume of knowledge or their life standards. They remain almost the same. Basically, when we are in primary school, so we are innocent, we are blank. Teachers and family and society they write on our tabula rasa. There is a technical term that is called tabula rasa. Tabula, tabula rasa. Rasa or rasa. Tabula rasa means clean slate. Clean slate. When a human being is born, there is nothing on the brain. Society, family, primary education, they write things on the brain or mind. This theory is called empiricism. This theory is called empiricism, while the opposite is rationalism. Empiricism, rationalism. Now, empiricism is closer to existentialism, while rationalism is closer to essentialism. Why I am talking these things in vocabulary class? Because I want to increase your level so that you can write in a technical, academic, advanced level with sophisticated vocabulary, and this way you can impress your examiner, reader, or listener. So please make a comment and write in the comment 4 words: empiricism, existentialism, rationalism, essentialism. Write these 4 words. Now these words you will use in your essay or your writing or speaking on education, system of education. जब आप एजुकेशन पे बात करेंगे तो आप आम लोगों की तरह बात नहीं करेंगे, आप थोड़ा डीप गहरी बात करेंगे। तो गहरी बात के लिए आपके पास वेकेबलरी भी एडवांस्ड होनी चाहिए, और एडवांस्ड वेकेबलरी का मतलब क्या है? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, टर्म्स। वी टॉक इन टेक्निकल लैंग्वेज। हम जब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो फिर हमारी वेकेबलरी जो है वो एडवांस्ड हो जाती है। Now the question is that why it is so difficult to break the primary education level? हम प्राइमरी एजुकेशन का लेवल से ऊपर क्यों नहीं जाते? In a country like Pakistan, if the primary school student, 10th class, 7th class or 5th class student, and you will see a person of 70 years or 60 years old, so they have the same mental level.
पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है या 5वीं जमात का है, उसका जो मेंटल लेवल है एग्जैक्टली वही आपको 60-70 साल बंदे का भी नज़र आता है। वही बातें, वही चीज़ें, कोई एडवांस चीज़ नहीं है, कोई गहरी चीज़ नहीं है, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं है। ज़्यादातर 99% जो है पाकिस्तान में, अगर किसी की उम्र 60-70 साल है या वो छठी क्लास का तालिब इल्म है, तो दोनों एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे बातें करते हैं। नाउ इन बिगिनिंग वी आर रिसेप्टिव, वी रिसीव इंफॉर्मेशन and we quickly respond to the situation. हम सिचुएशंस को जल्दी जल्दी, अब बच्चे आप देखते हैं ना, बच्चे बड़ी जल्दी एक्टिव होते हैं, they learn so quickly. Later on they do not maintain that level because we have the approach of empiricism. Empiricism claims that human being is born with tabula rasa and family, society, education, right, whatever is there. Empiricism क्या कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाली, उसका दिमाग जो है वो खाली स्लेट की तरह होता है। उसको हम कहते हैं टिब्यूला, TABULA टिब्यूला रेसा। टिब्यूलर ऐसे मीन्स क्लीन स्लेट, वो बिल्कुल खाली होता है। तो फैमिली ने, सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने जो उसमें लिख दिया वही लिख दिया गया, वो तख्ती भर गई है। नाउ लर्निंग एंड अनलर्निंग और डी लर्निंग, अब उस तख्ती को मिटाना, डिलीट करना, इरेज करना और उस पर नई चीजें लिखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। खाली तख्ती पे लिखना आसान है, लेकिन भरी हुई तख्ती, उसमें आपके अकायद है, आपका मजहब है, माशिरा है, कल्चर है, लोगों की बातें है, स्टैंडर्ड्स है, वो पक्की पक्की लिख जाती है। अब उस चीज को चेंज करना जो है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दिस इज वाई अनलर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलर्निंग मतलब कि आप पहली पुरानी घसी पट्टी चीजें भूल जाए तो नई चीजें फिर आपके पास आ सकती है। ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिसिज्म। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा है वो है रेशनलिज्म, कि यार माइंड में कुछ चीजें होती है, माइंड उसको प्रोसेस करता है, अकल से बंदे को काम लेता है। अकल ज़रूरी है, तजुर्बा या सोसाइटी वगैरह इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप थिंकिंग करें, सोच विचार करें, मेडिटेशन करें, तो हो सकता है आपका प्राइमरी लेवल जो है वो चेंज हो जाए। Another approach is essentialism and existentialism. Essentialism is closer to rationalism. Existentialism is closer to empiricism. तो उसमें यह है कि एसेंशियलिज्म में यह है कि इंसान जो है वो एक डीएनए कोड के साथ पैदा हो जाता है, उसकी जीन्स है, उसके क्रोमोसोम्स है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो एसेंशियल होती है, और वो कोड जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे पैदा होते हैं। इसको एसेंशियलिज्म कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि नहीं, कोई कोड नहीं है, कोई चीज नहीं है, वी मेक आवर ओन लाइफ, वी मेक आवर ओन फेट, वी मेक आवर ओन डेस्टिनी। हम अपना मंजिल खुद बनाते हैं। अगर हम काम करें तो काम होगा, हम काम ना करें तो काम नहीं होगा। ये कोई पहले से तकदीर या किस्मत या लक या डेस्टिनी, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। एंड देयर इज नो डिवाइन इंटरवेंशन। कोई ऊपर से जो है कोई चीज नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करता है, और वो कुदरत को मंजूर है तो होता है, कुदरत को मंजूर नहीं है तो नहीं होता। ये बातें जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज नहीं है। वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर चॉइसेस।
हम जो भी है हमारे अपने चॉइसेस के, एंड लाइफ इज द सम टोटल ऑफ डिसीजंस दैट वी मेक, आवर ओन डिसीजंस। हम जो कुछ भी है अपने फैसलों की वजह से है। कोई खुदा की तरफ से, या कोई अजाब, या कोई लानत, या कोई बदकिस्मती, या कोई जो है बदकिस्मत होना, ये कोई, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। तो कोई चीज जो है वो ऊपर से नहीं है, जो कुछ है इधर है, नीचे है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, कोई चीज पहले से नहीं लिखी गई है, जो कुछ है वो आप खुद लिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड दिस गिव्स यू विल पावर। विल पावर, ठीक है, आपको कुव्वत इरादी देती है। अगर आप चाहे तो करते हैं, न चाहे तो नहीं करते। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके मसाइल का, आपकी कामयाबी का, आपकी नाकामी का कोई और बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। न बंदा रिस्पॉन्सिबल है, न खुदा रिस्पॉन्सिबल है, न आपका बाप रिस्पॉन्सिबल है, न हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, यू हैव टू ब्लेम ओनली यूर सेल्फ। जो कुछ भी है आपकी अपने वजह से है। सो दिस अप्रोच इज existentialism. Now, this is up to you which one you take. अब ये एक एकेडमिक डिस्कशन है कि आप ये चाहते कि नहीं जी, हम जो चाहे सो आप करें, हमें अबस बदनाम किया, हम तो जी आपके गुलाम है, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, आपके रहमो करम पे है, आपके पाँव की जूती के मिट्टी की बराबर है। एक ये अप्रोच है। दूसरा ये कि नो, आई एम मास्टर, मास्टर मॉरलिटी, आई एम द मास्टर, आई एम नॉट स्लेव, मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ। अब्दुल्ला का मतलब क्या है? द स्लेव ऑफ गॉड। मैं कोई स्लेव शेव नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ, मैं अपने तकदीर का खुद मालिक हूँ। सो ये टू थिंग्स आर important to understand. Existentialism goes with empiricism, rationalism goes with essentialism. अब इन चार अल्फाज में इतनी बड़ी एकेडमिक डिस्कशन छुपी हुई है। Now remember that when we write with advanced vocabulary, our topics are also deep. मतलब ये hello, hi, how are you, how are you doing, come on, let's do something, ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप बड़ी डीप, गहरी गहरी बातें करते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज साइंस, what is sociology, what is political science, what is IR, how governments work, how states function, how societies function, why Canada is more advanced than Pakistan, what are the problems of Pakistan, what are the socio-economic and political problems of Pakistan, how Pakistan can become Canada, what are, Canada is a country of 36 million people and Pakistan is a country of 250 million people. Why 250 million brain do not make Pakistan a developed country, while just 36 million Canadians have made Canada a great country? Now, for these discussions, you need advanced vocabulary and you need reading original books, writers, authors, academic discussions, and then you are able to write in an advanced way. So we have to study, we have to read, we have to observe, we have to experience, we have to debate, we have to practice, we have to ask questions, we have to discuss. फिर हमारा दिमाग जो है वो ऊंची ऊंची बातें, नई नई बातें, क्रिएटिविटी फिर वो कर सकेगा।
अगर हम वही गस्सी पट्टी नाउन प्रोनाउन में लगे हैं और सारी ज़िंदगी गुजर गई और हमसे एक सेंटेंस सही नहीं लिखा जाता, तो आगे क्या होगा? सो दिस इज नॉलेज. द सेकंड पार्ट इज लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज कैन बी सिंपल, it can be complicated, it can be complex. It is not necessary that you talk in difficult words, but you have to talk in terminology. टर्म्स आपने यूज करने हैं. मसलन 4 टर्म्स मैंने आपको यूज करके दिए: रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म. ये 4 टर्म्स है. अब इन 4 टर्म्स पे आप घंटे घंटे बात कर सकते हैं. आप इस पे इसे लिख सकते हैं, आप इस पे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. सो फॉर लैंग्वेज यू नीड प्रैक्टिस एंड यू नीड सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल वे इज यूज कंजंक्शंस एंड पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन मार्क्स. एक एकेडमिक लैंग्वेज लिखने के लिए, एडवांस्ड वोकैबुलरी इस्तेमाल करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है कि एक आप कंजंक्शंस ज़्यादा इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा कंजंक्शंस, और दूसरा पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क दैट इज सेपरेट फ्रॉम नॉट द फुल स्टॉप एंड कॉमा बट अदर पंक्चुएशन मार्क्स, सेमीकोलन, कोलन, जो इस तरह की एडवांस्ड, डैश, हाइफन, ये अगर आप यूज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, सो देन योर राइटिंग विल बी मोर एकेडमिक. सो प्लीज मेक अ कमेंट, एंड दैट कमेंट इज that I will use conjunctions and all the 14 punctuation marks in my writing. हाँ, एम्पेरिसिज्म, एम्पीरियलिज्म और चीज़ है, वो आईआर में है. एम्पेरिसिज्म जो है ये साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन चीज़ों में, एजुकेशन में है. तो अभी आप एक कमेंट लिखिए, एवरीबॉडी टू राइट इन एडवांस मैनर I must use all types of conjunctions and all the 14 punctuation marks. ये 2 चीजें अगर आप कॉन्शियसली करें, कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर, मतलब आप इसको नियत बांधे कि जी मैंने कंजंक्शन ज्यादा इस्तेमाल करने हैं और 14 के 14 पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं, फिर आप देखें कि आपकी राइटिंग जो है वो कितनी एडवांस्ड हो जाती है, और फिर एग्जामिनर आपसे खुश होगा और आपको टॉप मार्क्स मिलेंगे. नाउ कंजंक्शंस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कंजंक्शन 2 किस्म के हैं. कोऑर्डिनेटिंग फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस, मसलन एंड, बट, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मसलन व्हेन, बिकॉज, ये जो है हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए. और इसके अलावा सेमीकोलन, कोलन, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, जितने भी ये 14 की 14 पंक्चुएशन मार्क्स है, तो वो आपने पंक्चुएशन मार्क्स के टेबल सामने रखना है, और जब भी आप राइटिंग करते हैं सो यू सेलेक्ट दोज पंक्चुएशन मार्क्स. अब हर वक्त कामा, फुल स्टॉप नहीं, ठीक है, हम सिर्फ कामा और फुल स्टॉप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी जब पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल ही नहीं करते. इस ग्रुप में आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे. इसका एक सर्च है, सर्च में लिखिए पंक्चुएशन मार्क्स, सो यू विल गेट लेक्चर्स एंड यू विल गेट नोट्स आल्सो ऑन पंक्चुएशन मार्क्स. सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क एंड राइट
on Palestine, Kashmir, the future of PTI, democracy in Pakistan, and write some advanced way education system of Pakistan. किसी भी टॉपिक पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, उसमें कंजंक्शन इस्तेमाल करें, पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करें, और कोई एडवांस वोकेबलरी, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई टर्म इस्तेमाल करें, टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करें. You can also ask questions. अभी आप दो काम कर सकते हैं, questions and writing for my evaluation. मैंने आज आपको नोट्स दिए हैं, जो भी टॉपिक्स है, इन तमाम टॉपिक्स पे आपको नोट्स भी अवेलेबल है. Palestine, Kashmir, future of PTI, democracy, any topic you can write. Education system of Pakistan. But go from primary level to advanced level. ऊपर जो है किसी ने रिलीजन के बारे में बात की है, इस्लाम. तो इसमें यह है कि इस्लाम जो है वो 5 पिलर्स है, उसको हर जगह जो है मत घुसाए. ठीक है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, इसमें इस्लाम का कोई काम नहीं है. आप अपना नमाज पढ़े, रोजे रखे, हज पे जाए, ज़कात दे, बस कलमा पढ़े, बाकी हर जगह उसको मत घुसाए, वरना फिर आपका माइंड जो है उधर ही रहेगा. एक मौलवी में और आप में कोई फर्क नहीं होगा. इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिक राइटिंग, हाँ, आप इसको खूबसूरत करें ना. आज मैंने आपको दिया ना, एग्जाम्पल्स भी दिए नोट्स में, कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे. इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिकली, रहमानुल्लाह, इसको नोट करें. आप सिंपल लिखे, इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिकली, बस. अब ये इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिक राइटिंग ये अजीब है, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है. इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिकली, आई हैव टू राइट all the conjunctions and 14 punctuation marks. I have to use, write की जगह use. अब write तो उसको चेंज करें. हाँ, make writing creative and attractive to examiners so that I can secure tremendous marks in my examination. I can secure huge marks or a lot of marks. Tremendous जो है वो क्वालिटी के लिए यूज होता है, नंबर के लिए नहीं. नो रिपीटिशन, एक्सेसिव रिपीटिशन, नो रिपीटेटिव यूज. एक लफ्ज जब आपने एक दफा इस्तेमाल किया, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें. इन ऑर्डर टू राइट एकेडमिकली, कामा, आई हैव टू यूज all the conjunctions and the 14 punctuation marks so that my writing is creative and I can impress examiner for maximum marks. ये अच्छा वर्जन होगा आपकी इस राइटिंग का. हाँ, मेक नोट्स ऑन पैलेस्टाइन, कश्मीर, फ्यूचर ऑफ पीटीआई, एजुकेशन सिस्टम. लेकिन इस पे अभी जो है थोड़े से लिखे, अभी भी करें ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए. 2-3-4 सेंटेंसेस अभी लिख ले, इसमें से किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि ये प्रेशर के अंदर लिखना जो है ये आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा.
वैसे आराम से बैठ के अपने घर में नोट्स बनाना, वो प्रेशर नहीं होता। परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, ये क्यों मैं आपको कहता हूँ कि क्लास में आ जाए, ताकि आपके प्रेशर को आप सस्टेन करें। वैसे तो हर चूहा जो है वो शेर होता है, लेकिन जंगल में जब रियल शेर होता है तो उसका अपना मजा होता है। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और अपनी राइटिंग करें ताकि मैं उसको चेक करूं, लेकिन जल्दी करें प्लीज, बिकॉज आई हैव 2 more क्लासेस। एक सेंटेंस लिखे, 2 लिखे। Now you have written better. In order to write academically and scholarly, I have to write all the conjunctions. I have to use. अभी मैंने आपको सही किया ना, यूज लिखो, राइट की जगह यूज लिखो। I have to use all the conjunctions and 14 punctuation marks in my writing to make my writing. फिर वही राइटिंग बुरा लगता है ना। एक दफा राइटिंग लिख लिया बस, अब जान छोड़ो उसकी। उसकी जगह कंपोजिशन लिखो, कम्युनिकेशन लिखो, आंसर्स लिखो। 50 अल्फाज होते हैं ना, इस सिनोनिम्स हम क्यों याद करते हैं। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि भाई ट्रेमेंडस मत 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 इस्तेमाल करिए मार्क्स के लिए। ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, ट्रेमेंडस एक्शन, ट्रेमेंडस लेक्चर, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, नंबर, उसके लिए हम ट्रेमेंडस यूज नहीं करते। मैंने आपको क्लियर कह दिया, आप नहीं सुन रहे या तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा है, क्या चक्कर है। साफ साफ मैंने आपको कह दिया कि भाई ट्रेमेंडस को इस्तेमाल न करें मार्क्स के लिए। आपने फिर लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स और लॉट ऑफ मार्क्स, ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स। Saeed Ahmed, there are many flaws in the education system of Pakistan: lack of critical thinking, rationalism, less concentration towards book reading, less concentration on book reading, towards नहीं होता, on book reading, not thinking out of the box, and outdated syllabus. There are no compatible and professional teachers in Pakistan. So these are some of the major. बस इस फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो प्लीज रिपीट न करें, रिपीट न करें। रेपिटिशन जो है ये एग्जामिनर को बहुत नापसंद है। ऊपर आपने लिख दिया कि देयर आर मेनी फ्लॉज। अब सो दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसको टेक्निकली कहते हैं रीडंडेंसी। रीडंडेंसी, REDUNDANCY, रीडंडेंसी बिल्कुल ना करें। प्रिसाइज, आज आपने नोट्स नहीं पढ़े, नोट्स में आपको बार बार एक लफ्ज नजर आता है, वो क्या है? प्रिसाइज, 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 टू द पॉइंट, कॉन्क्रीट, सॉलिड। आज के नोट्स को पढ़े, उसको बार बार पढ़े, समझे, उसको उस पर अमल करे,
तो फिर आप इस तरह की बात रिपीटिशन नहीं करोगे। रिपीटिशन बहुत खतरनाक बीमारी है, और रिपीटिशन जो है वो शैलो हालो लोग करते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, जो गहरे नहीं होते, उनके पास कुछ होता नहीं है तो वही बात बार बार करते हैं। फैसल अली, द Israel Palestine issue is a complex, deeply rooted conflict that has persisted for decades. Rationalism, which emphasizes the role of logic and reason in understanding international common ground. Moreover, liberalism advocates for peaceful resolution through diplomacy, cooperation, and respect for human rights, envisioning a future where both Israelis and nevertheless, achieving lasting peace in the region remains a daunting challenge, necessitating a multifaceted approach that integrates these diverse perspectives. Now, you have to apply IEARC. IEARC. Introduce. I. E. Explain. IEA. Argue, analyze. R. Recommend. C. Conclude. You have used rationalism. It is a rational choice theory, but it is not so much applicable in IR. IR में कोई इतना ज़्यादा रैशनलिज्म जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। रैशनलिज्म जो है वो एजुकेशन में या बाकी चीज़ों में है, लेकिन IR में नहीं है। IR में इसके मुकाबले में क्या है? रियलिज्म। लिबरलिज्म, आइडियलिज्म का मुकाबला हम कहाँ करते हैं? रियलिज्म से, रैशनलिज्म से नहीं। तो खामखा जो है एक टर्म यूज करना जो रेलेवेंट ना हो, ये भी गलत है। तो IEARC में आपने कंक्लूजन भी निकालना है कि भाई ये रियलिज्म ठीक है या लिबरलिज्म ठीक है। सिर्फ रिकमेंडेशन आप नहीं दे सकते, रिकमेंडेशन पेपर आपने सोल्यूशन भी देना है। अदरवाइज इट इज एक्सेलेंट फॉर राइटिंग, इट इज ओके, बट नॉट, इट इज नॉट रेलेवेंट। Arsalan, to get the attraction of your examiner and make your writing more academic, one must use variety of vocabulary, correct use of conjunction and punctuation. He must engage the attention of examiner in one's writing which need knowledge. हाँ ठीक है, आपके आइडिया सही है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ही मस्ट इंगेज। अब एक तो आपने वन लिखा तो फिर अब ही लिखते हैं तो फिर शी कहेगी कि मुझे क्यों नहीं लिखा। तो जब आपने वन लिखा है तो फिर वन ही कंटिन्यू करो, या ही शी दोनों लिखो, या दे लिखो, दे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ही मस्ट इंगेज द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। सो अटेंशन, ATTEN, अटेंशन नहीं है, अटेंशन है, ए है इसका स्पेलिंग। Future of PTI. PTI has been facing strict monitoring after the incidents of May 9, 2023. On this day, PTI chairman Imran Khan was arrested by the Ranger Force. Upon his arrest, there was a wave of protests. PTI has been facing... It would be banned or not, it is unclear. Whether it will be banned or not is not clear. ये अच्छा स्ट्रक्चर होगा। Those who would be found guilty. Would के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा। He would be found guilty. It is likely that it would be given chance to contest. of contest नहीं होता, given chance to contest in the upcoming general elections. ठीक है, इसमें कोई टर्मिनोलॉजी मुझे नजर नहीं आया, कोई रियलिज्म, कोई आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, कोई जो है रियल पॉलिटिक, कोई डेमोक्रेटिक कल्चर, कोई इस तरह की पॉलिटिकल साइंस या IR का कोई लैंग्वेज इसमें नजर नहीं आया। आम सी बात है।
Education system in our country is not so fair. Government schools, private schools and further private schools are divided into A levels and O levels. अभी देखो ना अक्सा, आप जो सबसे खतरनाक बीमारी है आपकी, वो आपके पंक्चुएशन मार्क्स है। पंक्चुएशन मार्क्स, इसमें कोई जो है ना अपने सब कामा ही लगाई है, कामा ही लगाई। इसको कहते हैं रनिंग सेंटेंसेस या इसको कहते हैं स्प्लाइस कामा। ये सबसे खतरनाक चीज है। आप इस ग्रुप में पंक्चुएशन लेके ऊपर सर्च में और पंक्चुएशन के तमाम नोट्स और तमाम लेक्चर सुने। इस पे अपने सेमी कोलन डालना है, इस पे अपने कोलन डालना है। आपने मुसलसल कामे डाले हैं तो एग्जामिनर इस पे बड़ा क्रॉस डालेगा। I think the future of Pakistan Tehreek-e-Insaf is bright in the current regards of the potential political situation. The PTI slogan has got enormous fame in the youth. हाँ, तो भाई मैं कोई सियासी बयान नहीं देना चाहता लेकिन जो भी पीटीआई को फॉलो करते हैं ना, तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, वो डीप लोग नहीं होते, वो सतही लोग होते हैं। मैं किसी की सियासी जज्बात को मजरूह नहीं करना चाहता और न कोई जनरलाइज करता हूं, लेकिन पीटीआई में आपको स्कॉलर बंदा नजर नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी में नजर आएगा, मुस्लिम लीग में भी है, काफी है, बाकियों में भी है। पीटीआई बड़े शेलो और हालो किस्म के लोग हैं। तो मुझे नहीं पता कि ब्राइट फ्यूचर आपने कैसे लिखा है। बहरहाल आपकी लैंग्वेज जो है वो ठीक है, लैंग्वेज इज ओके। एजुकेशन इज द ओनली थिंग। अगर आपको पीटीआई में कोई काम का बंदा स्कॉलर नजर आ जाए तो मुझे जरूर बताना कि जी फलान बंदा पीटीआई में है लेकिन स्कॉलर है, समझदार बंदा है। एजुकेशन इज द ओनली थिंग टू लिफ्ट अ नेशन। एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग। एजुकेशन चूंकि थर्ड पर्सन है, ही शी एट की तरह, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग a vital role in building the nation, but unfortunately Pakistan's education, ये unfortunately का लफ्ज इस्तेमाल ना करे, रीजंस दे, कॉजेज दे, ठीक है। ये unfortunately जो है ये इसके खिलाफ है रैशनलिज्म की या एम्पेरिसिज्म के, कि जी बस किस्मत खराब थी, बस यही हो गया। So see you in the next class now. There we will continue our practice.